In today's topic, we will discuss the part 5 of Unit 1, the Unit 1 energy units and its uses. And in this topic, the part 5 consists of quantum mechanics, energy in chemical system and processes. We will start with the quantum mechanics. Quantum mechanics is also known as quantum physics, quantum theory, the wave mechanical model, or matrix mechanics, including quantum field theory. It is a fundamental theory in physics which describes nature at the smallest, including atomic and subatomic scales. तो क्वांटम मैकेनिक्स को हम क्वांटम फिजिक्स भी कहते हैं, क्वांटम थ्योरी कहते हैं, द वेव मैकेनिकल मॉडल और मैट्रिक मैकेनिक्स कहते हैं. इट इंक्लूड क्वांटम फील्ड थ्योरी. इट इज़ अ फंडामेंटल थ्योरी इन फिजिक्स विच डिस्क्राइब नेचर at the smallest, including atomic and subatomic scales. क्वांटम का मतलब क्या होता है? द वर्ड क्वांटम derives from the Latin meaning how great और how much, कितना बड़ा या कितना. हिंदी में जिसको आप बोलते हैं, तो वर्ड क्वांटम लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है अंग्रेजी में हाउ ग्रेट और हाउ मच. इन क्वांटम मैकेनिक्स इट रिफर्स टू ए डिस्क्रीट यूनिट. In quantum mechanics, it refers to discrete unit assigned to a certain physical quantities such as the energy of an atom at rest. The discrete packet of energy is called photon, or smallest amount of energy is also known as क्वांटम और फोटान. जो डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी होता है, जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है एनर्जी का, उसको हम क्वांटम कहते हैं या इसको हम फोटान कहते हैं. जैसे सोलर एनर्जी है, सन से जो सोलर एनर्जी रेडिएशन के थ्रू मिलती है, ठीक है, तो जो रेडिएशन होता है उससे जो एनर्जी निकलती है, उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको हम क्वांटम कहते हैं या फोटान कहते हैं. ठीक, तो क्या हुआ? द क्वांटम derived from the Latin meaning how great or how much. In quantum mechanics, it refers to a discrete unit. Discrete माने होता है पृथक. Discrete माने होता है separate, अलग या पृथक. तो एक अलग अलग जो पार्टिकल होते हैं, जो एनर्जी का अलग अलग चीज़ें निकलती हैं, तो हर उसको बोलते हैं एक क्वांटम या बोलते हैं फोटान. फोटान को क्या कह सकते हैं हम? द डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी. डिस्क्रीट मतलब पृथक पृथक, अलग अलग जो एनर्जी के पैकेट निकलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? फोटान. द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज क्वांटम और फोटान. ठीक है, तो मैक्स प्लैंक सोल्यूशन इन 1919 टू द ब्लैक बॉडी रेडिएशन प्रॉब्लम रिपोर्टेड इन 1859. अल्बर्ट आइंस्टीन ऑफर्ड ए क्वांटम बेस्ड थ्योरी टू एक्सप्लेन द photoelectric effect. ठीक है, in 1905 reported 1887. Around 1900 to 1910 the atomic theory, but not the corpuscular theory of light, first came to be widely accepted as scientific fact. These latter theories can be viewed as quantum theories of matter and electromagnetic radiation respectively. In 1913, Peter Debye extended Niels Bohr theory of atomic structure, introducing elliptical orbits, a concept also introduced by Arnold Sommerfeld. This phase is known as old quantum theory. एक्चुअली इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है दैट इज़ प्लैंक थ्योरी एंड बोर्स थ्योरी. वी विल डिस्कस द प्लैंक थ्योरी एंड बोर्स थ्योरी.
in this section. According to Planck's, each energy element is proportional to its frequency. ठीक. Now the quantization of energy. The quantization of energy refers to the fact that at subatomic levels energy is best thought of as occurring in discrete packets. जो energy है वो किस फॉर्म में होती है? discrete packets के फॉर्म में होती है, जिसको हम फोटान भी कहते हैं. ठीक. तो quantization of energy refers to the fact that at subatomic level energy is best thought of as occurring in discrete packets called photons. Like paper money, photons come in different denomination. ठीक है. जैसे पैसे जो है हमारे डिफरेंट नोट्स में आते हैं, ऐसे ही फोटॉन्स भी हमारे डिफरेंट डिनोमिनेशन में आते हैं. ठीक है. इसमें सबसे पहले है हमारा प्लैंक्स थ्योरी. तो व्हाट इज़ प्लैंक थ्योरी? अकॉर्डिंग टू प्लैंक, in order to explain the energy distribution in the spectrum of black body radiation, ठीक है, black body radiation, Planck has given a hypothesis. ठीक. क्या हाइपोथेसिस दी प्लैंक ने? एनर्जी इज इमिटेड नॉट इन ए कंटिन्यूस मैनर बट इट इज डिस्क्रीट इन द नेचर. प्लैंक ने थ्योरी दी कि ब्लैक बॉडी से जो भी उत्सर्जित विकिरण या रेडिएशन में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण अलग अलग टेम्परेचर पर समझाने के लिए प्लैंक ने एक हाइपोथेसिस दी, परिकल्पना दी कि एनर्जी इज इमिटेड नॉट इन ए कंटिन्यूस मैनर बट इट इज़ डिस्क्रीट. मीन्स E is equal to NH nu, where N is equal to 1, 2, 3, 4 and any positive whole number, and H is equal to Planck constant, whose value is 6.62 into 10 to the power minus 34 joule second, where nu is equal to frequency. ये V नहीं है, ये nu है. ठीक है. NH न्यू, वेयर न्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन. तो होता क्या है, जितने भी एटॉमिक या सब एटॉमिक पार्टिकल हैं उनके मोशन को समझने के लिए जिस मैकेनिक्स का उपयोग करते हैं उसको हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं. तो क्वांटम मैकेनिक्स में ही, क्वांटाइजेशन में प्लैंक ने एक थ्योरी दी. प्लैंक ने थ्योरी क्या दी कि ब्लैक बॉडी से उत्सर्जित विकिरण या रेडिएशन में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण अलग अलग टेम्परेचर पर समझाने के लिए एक हाइपोथेसिस दी प्लैंक ने. वो हाइपोथेसिस थी एनर्जी इज इमिटेड नॉट इन ए कंटिन्यूस मैनर. मतलब n की वैल्यू 1.5, 1.25, 2.3, 2.4, 3.6 इस तरीके से n की वैल्यू नहीं रहेगी. इट इज़ ए कंप्लीट नंबर. ठीक. तो एनर्जी इज इमिटेड नॉट इन अ कंटिन्यूअस मैनर बट इट इज़ डिस्क्रीट इन द नेचर, वेयर E is equal to NH nu, where n is equal to complete number, that is 1, 2, 3, 4 and so on, and small h is equal to Planck constant, whose value is 6.62 into 10 to the power minus 34 joule second, and nu is equal to frequency of radiation. Now the Bohr has given one more theory related with the quantum mechanics. Bohr says electron revolves around the nucleus in orbits and motion is restricted in such a manner so that angular momentum is quantized. ठीक है. बोर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं, लेकिन वो एक रिस्ट्रिक्टेड मैनर में होते हैं, जैसे कि उनका जो मूवमेंट है एंगुलर मोमेंटम इज़
क्वांटाइज। ठीक, तो बोर के अकॉर्डिंग MVR इज इक्वल टू N इंटू एच अपॉन 2 पाई, वेयर N इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड M इज इक्वल टू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, H इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट, V इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ऑर्बिट। So according to Bohr's theory, electron revolves around the nucleus in orbits, and motion of electron is restricted in such a manner so that angular momentum is quantized, means MVR is equal to N into H upon 2 pi, where N is equal to 1, 2, 3, M is equal to mass of the electron, H is equal to Planck constant, and V is the velocity of electron, and R is equal to radius of orbit। ठीक, when electron jumps from upper state E2 to lower state, अगर जब इलेक्ट्रॉन भी ऊपरी सतह से नीचे वाले उसमें स्टेट में जंप करता है, तो एक फोटान इमिट होता है या एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज इक्वल टू E2 माइनस E1 व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम अपर स्टेट। अगर अपर स्टेट मान लो E2 है और लोअर स्टेट E1 है, एंड इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम upper state E2 to lower state E1, then a photon will emit, and h nu is equal to E2 minus E1. Just like the above process, when electron jumps from lower state E2 to upper E1 to upper state E2, then it absorbs a photon energy. Then again h nu is equal to E2 minus E1. This is the theory given by the Bohr, that electron revolves around the nucleus in orbit and motion is restricted in such a manner so the angular momentum is quantized. इसमें क्या होगा, when electron jumps from upper state E2 to lower state E1, then it emits a photon or energy, then h nu is equal to E2 minus E1. Again, when electron jumps from lower state E1 to upper state E2, it absorbs a photon, and again h nu is equal to E2 minus E1. So we have to study mainly Planck's theory and Bohr's theory in quantum mechanics। ठीक है, तो our next topic is energy in chemical system and processes। In energy in chemical system and processes, the energy in chemical processes occurring in various form like heat, chemical energy, electrical energy, internal energy, potential energy, kinetic energy, etc. Each type of energy is usually connected to specific activity, but also can be converted into other type। होता क्या है, केमिकल प्रोसेस में बहुत तरह की एनर्जी होती है, लाइक हीट, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, बहुत तरह की होती है। और हर तरह की जो एनर्जी होती है वो उस कनेक्टेड होती है स्पेसिफिक एक्टिविटी से किसी न किसी, और ये कन्वर्ट होती है किसी दूसरे टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। तो एनर्जी इन केमिकल प्रोसेसेस अकरिंग इन वेरियस फॉर्म्स लाइक हीट, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, etc. And each type of energy is usually connected to a specific activity but also can be converted to other types। ठीक, तो इसमें पहला एग्जांपल हम लेते हैं, मान लो हीट। होता क्या है, हीट इज़ ए फैमिलियर मैनिफेस्टेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, हीट से क्या होता है, मैनिफेस्टेशन माने उत्सर्जित,
एनर्जी ऊर्जा जो है ऊष्मा से उत्सर्जित होती है, निकलती रहती है। जैसे कि हम व्हेन वी टच ए हॉट ऑब्जेक्ट, जब हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो हमें क्या लगता है, एनर्जी फ्लोज फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट इनटू आवर फिंगर। गर्म चीज़ जो हम अपने हाथ में पकड़ते हैं उससे क्या होता है, एनर्जी हमारी उंगलियों की तरफ आ रही होती है, और वी प्रिसीव दैट इनकमिंग एनर्जी एज द ऑब्जेक्ट बीइंग हॉट। तो क्या होता है, एनर्जी हमेशा ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की ओर प्रवाहित होती है। तो जब हम कोई चीज़ ऐसी पकड़ते हैं जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो उससे क्या होता है, एनर्जी हमारी उंगलियों की तरफ आएगी, जिससे कि हमें लगता है कि वो चीज़ गर्म है। कन्वर्सली, व्हेन वी होल्ड एन आइस क्यूब इन आवर palm, एनर्जी फ्लोज फ्रॉम आवर हैंड इनटू द आइस क्यूब। ऐसे ही जब हम कोई ठंडा, मान लो फॉर एग्जांपल आइस क्यूब हम अपने हाथ में लेते हैं तो क्या होता है, एनर्जी हमारे हाथ से आइस क्यूब की ओर ट्रांसफ़र होगी, तो वो हमारी जब एनर्जी निकलेगी और उसकी ओर जाएगी तो हमें ठंडा महसूस होता है कि हमने हाथ में जो चीज़ पकड़ी है वो ठंडी है। इन बोथ द केसेस द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द टेम्परेचर ऑफ आवर हैंड। दोनों ही केस में जो हमारे हाथ का टेम्परेचर है वो हमारे जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है उससे डिफ़र है। सो वी कैन कंक्लूड दैट डिफरेंसेस इन टेम्परेचर आर द अल्टीमेट कॉज ऑफ हीट ट्रांसफ़र। इससे ही हम ये समझते हैं कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है वही सबसे मेन कारण है हीट ट्रांसफ़र होने का। ठीक, तो हीट इज़ ए फैमिलियर मैनिफेस्टेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, हीट से जो है क्या होता है, एनर्जी उत्सर्जित होती है। जब हम कोई चीज़, गर्म चीज़ अपने हाथ में पकड़ते हैं तो गर्म चीज़ का टेम्परेचर हमारे टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, और हम जानते हैं कि एनर्जी में ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की ओर प्रवाहित होती है। तो जब हम कोई गर्म चीज़ अपने हाथ में पकड़ते हैं तो एनर्जी उस गर्म चीज़ से हमारे हाथ की तरफ आती है, तो हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है, तो वो चीज़ हमको गर्म महसूस होती है। ऐसे ही कोई ठंडी चीज़, मान लीजिए हम आइस क्यूब अपने हाथ में लेते हैं तो आइस क्यूब का टेम्परेचर हमारे टेम्परेचर से कम होता है, तो एनर्जी का फ्लो हमारी बॉडी से आइस क्यूब की तरफ होगा तो हमारी एनर्जी रिलीज़ होगी। तो जब हमारी एनर्जी रिलीज़ होगी तो हमको ठंडा महसूस होगा, तो हमने जो चीज़ हाथ में पकड़ी है वो हमें ठंडी महसूस होती है। ठीक, तो इससे क्या नतीजा निकला, इससे नतीजा ये निकला, कंक्लूड दैट डिफरेंसेस इन टेम्परेचर आर द अल्टीमेट कॉजेज ऑफ हीट ट्रांसफ़र। जो हम टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है वही हमारा मुख्य कारण है एनर्जी हीट ट्रांसफ़र होने का। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द फेज चेंज। फेज चेंज is a physical process in which a substance goes from one phase to another. Usually the change occur when adding or removing heat at a particular temperature. किसी भी चीज़ का फेज चेंज होता है जब हम उसको टेम्परेचर देते हैं, जैसे कि सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। तो बहुत इस तरीके के जो चेंजेस होते हैं एक फेज़ से दूसरे फेज़ में जाने को, दैट इज़ नोन एज फेज चेंज फिजिकल प्रोसेस। तो ए फेज चेंज इज़ अ फिजिकल प्रोसेस in which a substance grows from one phase to another. Usually, the changes occur when adding or removing heat at a particular temperature, known as the melting point or the boiling point of the substance. Mainly, जब हम टेम्परेचर देते हैं तो चेंज होता है, ठीक है, उस चीज़ में, और नोन एज मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। जब हम टेम्परेचर ज़्यादा देते हैं, द मेल्टिंग पॉइंट इज़ द टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस ग्रो फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। फॉर एग्जांपल, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जब हम सॉलिड से किसी चीज़ को हम जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो सॉलिड से लिक्विड में, और फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड पे कन्वर्ट होता है। ठीक है, द बॉइलिंग पॉइंट इज़ द टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस ग्रोन फ्रॉम ए लिक्विड टू गैस और फ्रॉम गैस टू ए लिक्विड। द नेचर ऑफ द फेज चेंज डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफ़र। Heat going into a substance changes its
from a solid to a liquid or liquid to gas. Removing heat from a substance changes a gas to a liquid or a liquid to a solid. तो बहुत सारे तरीके के फेज चेंज होते हैं, जैसे सॉलिड को हम बिना लिक्विड में बदले भी गैस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे फेज चेंजेस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे लिक्विड टू गैस, तो लिक्विड टू गैस जो चेंज होता है दैट इज़ नोन एज, लिक्विड टू गैस इज़ नोन एज इवेपोरेशन। लिक्विड टू गैस इज़ नोन एज इवेपोरेशन। लाइक लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू सॉलिड जब हम क्या करेंगे, लिक्विड को ठंडा करेंगे, लिक्विड को फ्रीज करेंगे, तो क्या होगा, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रीजिंग। लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस करने के लिए हम क्या करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो क्या ये प्रोसेस होती है, इवेपोरेशन होता है। तो ये फेज चेंज हुआ लिक्विड से गैस में, तो किसकी तरह वजह से होता है, ये इवेपोरेशन होता है। ऐसे ही गैस टू लिक्विड, जब गैस को हम ठंडा करेंगे तो ठंडा करने पे किस फॉर्म में हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। ठीक है, ऐसे ही सॉलिड टू गैस, सॉलिड टू गैस इज नोन एज सब्लिमेशन। ठीक है, तो होता क्या है, गैस टू सॉलिड भी हो जाता है। अदरवाइज हमने पढ़ा है जनरली क्या होता है, गैस को पहले हम लिक्विड में चेंज करते हैं, लिक्विड से फिर हम सॉलिड में चेंज करते हैं। लेकिन हवा में जो वेपर होते हैं, कई बार आकाश में जो हवा में जो वाटर वेपर जो होते हैं वो डायरेक्ट आइस बन जाते हैं। ठीक है, इट इज़ नोन एज होर फ्रॉस्ट। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज होर फ्रॉस्टिंग। तो सॉलिड CO2 के फॉर्म में होते हैं ये। सॉलिड CO2 इज कॉल्ड एज ड्राई आइस। ऐसे ही हमें पता है कि सॉलिड को हम लिक्विड में बदलते हैं, फिर लिक्विड को गैस में बदलते हैं। लेकिन कभी कभी, एक एग्जांपल देता हूँ आपको, सॉलिड से गैस में हम डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। दैट प्रोसेस इज़ नोन एज सब्लिमेशन। इसका मेन एग्जांपल आप सब्लिमेशन का है कपूर, जो हम लोग पूजा वगैरह में घर में अक्सर यूज़ करते हैं, कपूर। दैट इज द एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है, आप देखिए सॉलिड होता है कपूर, वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। द कपूर इज डायरेक्टली चेंज इट्स फेज from solid phase to gaseous phase. So these are multiple kind of phase: liquid to solid, liquid to gas, gas to liquid, gas to solid, and solid to gas. So these all are the phase change. It depends on the temperature. ठीक है, तो now we will discuss the next topic, that is known as bond energy and chemical रिएक्शन। ठीक, तो बॉन्ड एनर्जी में क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी होता है बेसिकली ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी मॉलिक्यूल को उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम जिनसे वो बना होता है में ब्रेक या तोड़ने के लिए आवश्यक होती है। जितनी एनर्जी किसी जितनी एनर्जी किसी चीज़ को बनाने में लगी होती है, दो चीज़ों को मिला के, तो उतनी ही एनर्जी चाहिए होती है उसको ब्रेक करने के लिए। जिन चीज़ों से वो मिलकर बना होता है उन्हीं चीज़ों में वापस तोड़ के ब्रेक करके अलग अलग करने में उतनी ही एनर्जी चाहिए होती है जितनी एनर्जी से हम उन दो चीज़ों को जोड़ करके एक चीज़ बनाते हैं। तो बॉन्ड एनर्जी ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी मॉलिक्यूल को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम मतलब जिन एटम से वो मिलकर बना है में तोड़ने के लिए आवश्यक होती है। बॉन्ड एनर्जी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अपार्ट ए मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू इट्स कंपोनेंट एटम्स। बॉन्ड एनर्जी ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी मॉलिक्यूल को उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम जिनसे वो बना है उसमें तोड़ने के लिए आवश्यक होती है। इट इज़ अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ ए केमिकल बॉन्ड। बॉन्ड एनर्जी इज ऑल्सो नोन एज बॉन्ड एंथैल्पी।
इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल H। बॉन्ड एनर्जी को हम बॉन्ड एंथैल्पी भी कहते हैं और सिंपली एज बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसको बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं। इफ़ वी पुट एनर्जी इनटू ए मॉलिक्यूल we can cause its bond to break, separating molecule into individual atoms. Bond between certain specific elements usually have a characteristic energy called the bond energy that is needed to break the bond. जब किसी मॉलिक्यूल को ऊर्जा दी जाती है तो बॉन्ड टूट जाता है और परमाणु या एटम अलग अलग हो जाते हैं। बॉन्ड एनर्जी को हम बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं। ठीक है, इफ़ वी पुट एनर्जी इनटू मॉलिक्यूल वी कैन कॉज इट्स बॉन्ड टू ब्रेक, सेपरेटिंग ए मॉलिक्यूल इनटू इंडिविजुअल एटम्स। ठीक, जब किसी मॉलिक्यूल को ऊर्जा दी जाती है तो बॉन्ड टूट जाता है और एटम अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आगे है द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी वॉज लिबरेटेड व्हेन द एटम्स मेड द केमिकल बॉन्ड इज इन द फर्स्ट प्लेस। द टर्म बॉन्ड एनर्जी इज यूजुअली used to describe the strength of interaction between atoms that make covalent bond for atoms in ionic compounds attracted by opposite charges. The term lattice energy is used. Now you can see in the diagram the bond and the bond energy, and the bond energy is measured in kilocalorie per mole. Now you can see in the diagram as the single bond between carbon and hydrogen, the bond energy of this is 100 kilocalorie per mole. Then the single bond of carbon and oxygen, the bond energy of single bond of carbon and oxygen is 86. The dual bond of carbon and oxygen, the bond energy is 190. Again, the carbon and nitrogen single bond energy is 70. Again, the carbon single bond energy level is 85 kilocalorie per mole, and the double bond between carbon and carbon, the bond energy is 145 kilocalorie per mole, and the triple bond between carbon the bond energy is 200 kilocalorie per mole, and the nitrogen hydrogen single bond, the bond energy is 93 kilocalorie per mole, and the bond energy of single bond between hydrogen and hydrogen is 105 kilocalorie per mole. This is the bond energy as per the bond between the two elements. Now we will discuss about some reaction, that is exothermic reaction, endothermic reaction, and the third reaction will be the energy of biochemical reaction. The bond energy and chemical reaction में हमने पहले पढ़ा bond energy. Now we will discuss 3 types of reactions. The first reaction is exothermic reaction. तो exothermic reaction में बेसिकली होता क्या है, इसमें हम जो भी करेंगे कंपैरिजन करेंगे बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो जो भी हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो एरो के इधर जो लिखते हैं उधर क्या होता है, हमारा होता है रिएक्टेंट। दो चीज़ों को मिला के हम कोई तीसरी चीज़ बना रहे हैं, तो जिस साइड हम लेफ़्ट साइड हम जो भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो लेफ़्ट साइड में हम जो लिखते हैं वो उधर हम क्या कर रहे होते हैं, रिएक्शन कर रहे होते हैं, तो वो पोर्शन हमारा क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट। और उनसे मिल के जब एरो के इधर हम लिखते हैं इक्वल टू, हमारा क्या बना, तो जो प्रोडक्ट हमें मिलता है दैट इज़ नोन एज प्रोडक्ट। तो नाउ यू कैन सी थ्रू द डायग्राम एज वेल एज द केमिकल रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज लोअर
than the energy of the reactants. इसमें जब हम जब रिएक्शन कर रहे होते हैं तो एनर्जी लेवल हमारा ज़्यादा होता है और प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल कम होता है. The energy of the product is lower than the energy of the reactants. Thus, in the course of the reaction, the substances lose energy to the surrounding environment. Such reactions are exothermic and can be represented by the energy level diagram as you can see in the picture. तो इसमें क्या होगी, एनर्जी रिलीज़ होगी, एनर्जी लिबरेट होगी जब हमारे रिएक्शंस की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से ज़्यादा होगी. तो इस केमिकल रिएक्शन के बाद क्या होगा, एनर्जी रिलीज़ होगा, एनर्जी लिबरेट होगा. इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज लोअर दैन द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स. दस in the course of the reaction, the substances lose energy to the surrounding environment. Such reactions are exothermic and can be represented by energy level diagram as you can see in this diagram. And the reaction is 2H2 plus O2 that is equal to 2H2O plus 135 किलो कैलोरी. 135 किलो कैलोरी इसमें एनर्जी लिबरेट हो रही है. ठीक है, इसमें 135 किलो कैलोरी एनर्जी हमारी रिलीज हो रही है. बिकॉज एनर्जी इज ए प्रोडक्ट. इसमें क्या है, एनर्जी, एनर्जी हमारा क्या है, इसमें प्रोडक्ट है. 135 किलो कैलोरी. देखिए लेफ्ट साइड एरो के क्या है, हमारा रिएक्टेंट है और एरो के राइट साइड क्या है, हमारा प्रोडक्ट है. तो 135 किलो कैलोरी हमारी एनर्जी रिलीज हो रही है. दैट इज नथिंग बट प्रोडक्ट. एनर्जी इज गिवन ऑफ बाय द रिएक्शन. देयरफॉर दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें कि एनर्जी रिलीज होती है. ठीक, अब इसका ठीक उल्टा होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन. ठीक, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में इन केमिकल रिएक्शंस वेयर द प्रोडक्ट हैव ए हायर एनर्जी दैन द रिएक्टेंट्स मस्ट एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट टू रिएक्ट. ऐसे रिएक्शन जिनमें हम रिएक्शन करते समय एनर्जी लेवल कम होता है इन कंपैरिजन टू उन रिएक्शन से जो हम प्रोडक्ट तैयार कराते हैं. तो जो प्रोडक्ट बन के फाइनली निकलता है उसका एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है. तो हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे, जब हम रिएक्शन करेंगे तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी. मतलब इस प्रोसेस में एनर्जी सराउंडिंग से एब्जॉर्ब होगी. एक्सोथर्मिक में क्या होता था, एनर्जी सराउंडिंग में रिलीज हो रही थी, लिबरेट हो रही थी. लेकिन एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी. ठीक, तो इन केमिकल रिएक्शन वेयर द प्रोडक्ट हैव ए हायर एनर्जी दैन द रिएक्टेंट्स मस्ट एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट टू रिएक्ट. These reactions are endothermic and can be represented by an energy level diagram. As you can see in this diagram, energy is absorbing during the reaction. ठीक, तो इसका एक केमिकल रिएक्शन है N2 प्लस O2 प्लस 45 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 2NO. अब देखिए इसमें क्या है, एनर्जी किस साइड है, एनर्जी रिएक्शन की तरफ है. एनर्जी हम ले रहे हैं ड्यूरिंग रिएक्शन. तो बिकॉज एनर्जी इज अ रिएक्टेंट, एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द रिएक्शन, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक. तो ये जी हमेशा ध्यान रखेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और एक्सोथर्मिक इस याद करने का तरीका है, एग्जिट माने रिलीज होना. तो एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक एग्जिट में भी EX है. तो ये याद करने का तरीका है हमारा. जब एक्सोथर्मिक होगा मतलब एनर्जी एग्जिट होगी, रिलीज होगी. और जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी. तो N2 प्लस O2 प्लस 45 किलो कैलोरी
इज इक्वल टू 2NO. तो बिकॉज energy is a reactant, energy is absorbed by the reaction, therefore this reaction is endothermic reaction. ठीक है. तो now the last topic of today's lecture is energy of biochemical reaction. ठीक. तो इसमें क्या है, द केमिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन बॉडी और एनी लिविंग organism is very complex. Even so, the chemical reactions found in the human body follow the same principles of energy that other chemical reactions follow. An important reaction that provides energy for our bodies is द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है हमारा C6H12O6. ठीक है. तो जैसे बाकी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वैसे ही ह्यूमन बॉडी में भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं. तो एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो हमारी बॉडी में एनर्जी देता है दैट इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज. तो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज जो होता है हमारी बॉडी में वो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है. तो इसका आप रिएक्शन है C6H12O6 प्लस 6O2 इज इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 670 किलो कैलोरी. Considering that 1 mole of C6H12O6 has a volume of about 115 ml, we can see that glucose is a compact source of energy. ठीक. तो ये हो गया हमारी बॉडी के एनर्जी किससे मिलता है. हमारी बॉडी को एनर्जी मिलता है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज. ठीक है. तो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन दैट प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी is the oxidation of glucose, that is C6H12O6. Now the equation is C6H12O6 plus 6O2 that is equal to 6CO2 plus 6H2O plus 670 किलो कैलोरी. इतनी एनर्जी प्रोडक्ट में मिलेगी आफ्टर ऑक्सीडेशन. 670 किलो कैलोरी हमारी बॉडी को मिलेगी. कंसिडरिंग दैट 1 मोल ऑफ ग्लूकोज दैट इज C6H12O6 हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ अबाउट 115 ml, we can see that glucose is a compact source of energy. Now this is the end of today's lecture. In the next lecture we will discuss about the entropy and temperature, Carnot heat engine and the heat pump and refrigerator.